Today we are continuing product method of calculating national income. In previous class we have done few numericals, and today I am discussing the next type of numericals which may come in your board examinations. But before starting the numericals, we must brush up the formula of your product method of calculating national income. What was that and what we get from the formula? Generally from the formula in product method we get and calculate gross value added at market price. It is also known as gross GDP MP, that is gross domestic product at market price. It is also known as value added. Why? Because we consider only final goods value or value created by each and individual unit. Okay, but since it's difficult, so what we do is generally we take up all the industries value of output and then we subtract what? We subtract intermediate consumption. The formula for GVAMP in product method is value of output of all firms minus intermediate consumption. In short we call it as IC. Okay, V dot O minus IC is the formula of gross value added at market price, also termed as GDP-MP. This should be clear in your head first of all. Then value of output you have to find out. It is generally sales in plus change in stock. Up sales, if it is given the question, it's very good. If it's not given in the question, you must have done profit and loss questions of maths in of your class 6 to 8, I think. Okay, so what you have done there, how you calculate sales over there, quantity sold into price per unit. So sales will be calculated as SP into selling price into quantity sold, that is quantity sold into price per unit, multiply कर देंगे, you will get total sales. And secondly, sometimes it happens कि sale is given in domestic market as well as for your exports also. So exports means selling to the outside country, to the outside buyer, is also a part of sales, and here we are caring about total sales. So export is also a part of sale of a company or any producer or any seller of the country. So hence total sale calculate करते वक्त what we will consider total sales में we consider sale goods sold inside the domestic territory plus exports outside the country. So total sale will be like this also. So if in question, if it is given quantity sold and price per unit, you will multiply them, Q into P. And if it's given कि quantity amount total sales in domestic territory and total export is given, then you will add them both and find out total sales. So it depends upon the question what you will apply and what method you will use to find out the sales. Generally students, it's a common sense. Okay, कि टोटल सेल कैसे होगी, जितना भी उसने कंपनी ने बेचा है दैट विल बी अ टोटल सेल. कंट्री के अंदर बेचा हो या बाहर बेचा हो, इफ़ दे हैव सोल्ड गुड दैट विल बी अ पार्ट ऑफ देयर टोटल सेल्स. दैट इज़ कॉमन सेंस. देयर इज़ अ नो सेट फॉर्मूला फॉर दैट. ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाट? क्वांटिटी इनटू प्राइस सेल. अगर मुझे पता है कि आई हैव सोल्ड 10,000 यूनिट्स एंड प्राइस ऑफ पर यूनिट इज़ ₹20, देन टोटल सेल कैसे निकालोगे? अकाउंट्स भी करते आए हैं 11th क्लास से हम लोग. तो 20 into 10,000 will be your total sales, isn't it? So that is your common sense. You have to use your little bit presence of mind over here. There is no set formula for this. Okay, now let's start the numericals. Formula is what? GVAMP is equal to value of output minus intermediate consumption by all firms. By all firms, ये सब firms का होगा, या तो एक साथ करोगे या अलग अलग करोगे, बट यू हैव टू डू फॉर ऑल फर्म्स. किसी भी फर्म को जिसका नाम दिया हो यू विल नॉट इग्नोर एज एन सेलर. ठीक है, नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चन. सी, क्वेश्चन इज सेइंग ओवर हियर एन इकोनॉमी हैज़ ओनली 2 फर्म्स. कितने फर्म्स हैं? फर्म ए है एंड फर्म बी है. देयर आर 2 फर्म्स. जस्ट सी इन द क्वेश्चन. Okay, on the basis of following information about the firms, find out value added by firms A and B and GDP at MP. तो जब आप वैल्यू एडेड निकाल लोगे सेपरेटली, उन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट GDP MP. ये कॉमन सेंस की बात है. ओके, एंड सिंस दे हैव आस्क्ड 2 थिंग्स,
पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो अगर ये 6 मार्क्स क्वेश्चन होगा देन इट विल बी ऑफ 3 मार्क्स ईच पार्ट, कीप दिस इन माइंड, 3 मार्क्स फॉर पार्ट ए, 3 मार्क्स फॉर पार्ट बी। और इट कैन बी क्योंकि ये ईजी हो जाता है, इट कैन बी 4+2 ऑल्सो, दैट विल मीन 4 मार्क्स फॉर पार्ट ए एंड 2 मार्क्स फॉर पार्ट बी, क्योंकि 2 मार्क्स ये तो कॉमन सेंस है, इन दोनों को आपने जोड़ दिया, यू विल गेट GDP MP। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन। अब मैंने क्या बोला, पहले ए का पूरा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC निकाल लेंगे एंड बी का निकाल लेंगे। तो व्हाट दे हैव डन, जस्ट सी, दिस इज योर क्वेश्चन, एक्सपोर्ट बाय फर्म ए, इम्पोर्ट बाय फर्म ए। तो एक्सपोर्ट क्या हो गई, सेल हो गई, इम्पोर्ट क्या हो गया, परचेज हो गया। ठीक है, तो क्या इतने ही परचेज हैं, और दे हैव सोल्ड इनसाइड द कंट्री ऑल्सो, ये तो कंट्री के बाहर की बात हो गई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। इम्पोर्ट किया है, बाय किया है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एक्सपोर्ट किया है, सेल किया है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ सेल। कॉमन सेंस ओवर हेयर। ओके, ये नहीं कि अरे ये कहाँ से आ गया, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। नेक्स्ट सी, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, जो हाउस होल्ड को जो कुछ भी फर्म बेचेगी दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सेल। अब वो किसी को भी बेचे, किसी को भी बेचे, ठीक है, टोटल सेल्स में वो जो कुछ भी सेल कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, पार्ट ऑफ सेल, हाउस होल्ड को बेच रही है, पार्ट ऑफ सेल, गवर्नमेंट को बेच रही है, पार्ट ऑफ सेल। ओके, नाउ सी, फर्म बी को बेच रही है, पार्ट ऑफ सेल। कहीं भी बेचा, किसको बेचा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, कितना बेचा इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस प्रोडक्ट मेथड। ओके, तो कीप दिस इन माइंड, किसको बेचा नहीं मतलब है, कितना बेचा इज पार्ट ऑफ योर कंसर्न, मैटर ऑफ योर कंसर्न। ओके, लेट्स सी नाउ, तो दिस इज योर सेल, सेल टू हाउसहोल्ड बाय फर्म ए, दिस इज ऑल्सो सेल, सेल टू फर्म बी बाय फर्म ए, दिस इज ऑल्सो सेल, सेल्स टू फर्म ए बाय बी, इसको भी छोड़ दो, सेल्स टू हाउसहोल्ड बाय, अब ये फर्म बी बाय आ गया ना, ये बाय बी है, तो ये बी का पार्ट है, इसको अभी हम डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम डील कर रहे हैं ए को। ठीक है, तो ए में टोटल सेल देखो, दिस 20 lakhs, फिर सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए 90 lakhs, प्लस सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, बाय फर्म ए ने कहाँ कहाँ बेचा, एक्सपोर्ट किया, हाउस होल्ड को बेचा एंड बी को बेचा 40,000, तो 20 + 90 + 40 ये इनकी सेल हो गई। जस्ट सी, 20, 90, 40 इनकी सेल है, तो दिस इज योर देयर टोटल सेल्स ऑफ प्रोड्यूसर ए। ओके, अब मेरा फॉर्मूला क्या है, माय फॉर्मूला सेज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये इनकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन स्टॉक नहीं दिया। हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज स्टॉक इज नॉट देयर इन द क्वेश्चन। ओके, नो क्लोजिंग स्टॉक, नो ओपनिंग स्टॉक इज गिवन, तो वी विल अस्यूम इट्स नॉट देयर, नहीं है कोई चेंज स्टॉक, सब कुछ बेच दिया उन्होंने। ओके, नो स्टॉक इज देयर, नो क्लोजिंग स्टॉक इज देयर, नो ओपनिंग स्टॉक इज देयर, तो हमारा यही ज़ीरो मान लिया, तो 150 - 0 इज़ 150, तो ये मेरी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बोलता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी है, 150। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन, उन्होंने कितने इनपुट्स यूज़ किए, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड ओवर हेयर। ओके, नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस या उनकी इनपुट कॉस्ट क्या होगी, जितनी भी फर्म ए ने परचेज करी है। तो फर्म ए की परचेज देखो कहाँ कहाँ है, इम्पोर्ट्स बाय फर्म ए, फर्म ने कुछ इम्पोर्ट किया है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट की, रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया, कुछ इनपुट, इसको हम अज्यूम करेंगे कि ये उसकी परचेज है। ठीक है, क्या है, परचेज है, परचेज है। ओके, सेल्स टू हो गया, सेल्स टू फर्म ये भी हो गया, सेल छोड़ देते हैं। हाँ, अभी देखो ध्यान से देखना, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी कि ए कहाँ कहाँ आया, इन 4 में आया, 1 2 3 4, उसमें 3 तो सेल थे, तो 4th है वो उसकी परचेज़ है। तो इनकी परचेज़ क्या हो गई, परचेज़ फ्रॉम बी भी है, परचेज़ फ्रॉम बी भी है, आई डोंट थिंक सो, परचेज़ फ्रॉम बी ये कहाँ से आया, ओके ये देखो, सेल्स टू फर्म ए बाय बी, बी से इन्होंने ख़रीदा भी है। ओके, तो ये जो ख़रीद लिया सेल है,
लेकिन किसकी सेल है, बी की सेल है, लेकिन ये ए की तो परचेज़ है, दिस विल बी परचेज। तो दो परचेज मिल गई, एक मिल गया इम्पोर्ट, एक मिल गया बाय बी जैसी। तो ये हमारी हो गई इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो फॉर्मूला सेज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो 150 माइनस 80, तो 70 हो गई इनकी वैल्यू एडेड। तो हमारा क्वेश्चन में वैल्यू एडेड बाय फर्म ए मुझको मिल गया। नाउ फर्म बी का भी सिमिलरली वी विल फाइंड आउट। ओके, लेट मी क्लीन दिस फर्स्ट। ओके, अब हम आते हैं बी पे। वेयर यू कैन फाइंड बी, वी कैन फाइंड बी हेयर, वी कैन फाइंड बी हेयर, वी कैन फाइंड बी हेयर। 3 इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर योर फर्म बी। अब इसमें देखो कितनी, वही है, सेल फाइंड आउट करो एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करो। सेल टू फर्म बाय फर्म ए है, ये इनका परचेज हो गया। बाय फर्म ए है, फर्म ए से बी ने ख़रीदा है, तो बी की बात, अब बी पे फोकस करो। बी मेरी फर्म है जिसको हम, उसका डेटा हमें चाहिए। तो बी ने ख़रीदा है टू फर्म ए बाय फर्म बी, बी ने ख़रीदा है, तो ये बी की क्या हो गई, परचेज हो गई। ओके, सेल्स टू फर्म ए बाय फर्म बी, अब ये बी ने बेचा है, सेल की है, दिस इज़ योर सेल ऑफ फर्म बी, तो ये आ गया 30। ओके, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, अब ये हाँ बी ने हाउस होल्ड्स को सेल किया है 60, तो दिस विल कम हेयर। तो टोटल सेल्स आ गई हमारी 30 टू फर्म ए एंड 60 टू हाउस होल्ड्स, ये बी के सेल है, निकल आई। अब बी ने जो ख़रीदा है वो ए की तो सेल थी, लेकिन बी की परचेज है, तो कितना था अमाउंट, जस्ट सी 40। तो ये 40 उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, किसका, बी का, फर्म बी का, जो उसने ए से ख़रीदा। लैंग्वेज पे फोकस होना चाहिए हेयर। इफ़ यू इग्नोर लैंग्वेज, इफ़ यू आर हरी, then your question will go wrong. तो 90 minus 40, 90 minus 40, 90 is your total sale of firm B and 40 is intermediate consumption, यानी B का वैल्यू एडेड कितना है, 50 है। ओके, तो हमको दोनों फर्म का क्या मिल गया, वैल्यू एडिशन मिल गया। सी 70 ऑफ फर्म A एंड 50 lakhs ऑफ फर्म B। अब इन दोनों को, अब इकॉनमी की हम बात करते हैं, तो ये मेरा ए पार्ट का आंसर मुझे मिल गया, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी वी हैव, ये सेपरेट ही कैलकुलेट होगा ऑलवेज, पूछा गया हो चाहे नहीं पूछा गया हो, ठीक है। तो फर्म ए का मिल गया, फर्म बी का मिल गया, ए पार्ट इज़ कवर्ड। ना बी पार्ट क्या कह रहा है, GDP-MP। GDP-MP आई टोल्ड यू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस किस इक्वल होता है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब टोटल वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। तो मेरी इकोनॉमी में इस क्वेश्चन में कितनी फर्म्स हैं, दो ही फर्म्स हैं, ए है एंड बी है, ए एंड बी ही है खाली। तो वैल्यू एडिशन जो होगा वो फर्म ए और बी ही करेंगी, तो वही इकोनॉमी का GDP-MP होगा। ओके, तो फर्म ए का कितना है 70 lakhs, फर्म बी का कितना है 50 lakhs, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल वैल्यू एडिशन इन द कंट्री मिल गया। कोई कन्वर्जन नहीं है, वाई, बिकॉज क्वेश्चन में GDP-MP पूछा है, और GDP-MP क्या होता है, GVA-MP ही होता है, क्या होता है, GVA-MP ही होता है। और GVA-MP हाउ यू विल कैलकुलेट, इट इज़ वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स, दोनों फर्म्स का हम कैलकुलेट, वी हैव ऑलरेडी डन द कैलकुलेशन, फाइंड आउट द आंसर ऑफ वैल्यू एडिशन डन बाय ए एंड वैल्यू एडिशन डन बाय बी। वी विल एड देम अप एंड वी विल फाइंड आउट total value addition, gross value addition, gross domestic product in the country at market price. Factor cost पूछा होता, we would have gone to for conversion. Net पूछा होता, conversion, but similar to formula पूछा है तो no conversion required. Okay, so this is your one numerical. Got it? Now we are moving to, ये similar है, मतलब what we get कि when separate firms का information is given, we have to calculate their sales and intermediate consumption separately. You can make this type of chart also the way they have done. इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, you can do this कि फर्म A यहाँ लिखा, फर्म B यहाँ लिखा, ठीक है। अब उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा, ये फर्म ए की वैल्यू एडिशन आ गई, ये फर्म बी की वैल्यू एडिशन आ गई। कैसे टेबल बनाओगे कन्वीनियंटली, दैट्स अपॉन यू, आप इसको फॉलो करोगे, गुड, आप ऐसे बनाओगे, हॉरिजॉन्टल बनाओ, वर्टिकल बनाओ,
वर्किंग नोट यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। वर्किंग नोट ये टेबल आपको दिखाना पड़ेगा। हवा से क्वेश्चन नहीं है, वो सोल्यूशन आएगा, सिर्फ आंसर लिख दिया। यू हैव टू मेक दिस टेबल इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द आंसर। ओके, आंसर तो पूछ भी सकते हैं, कैसे आया 70 lakhs and 50 lakhs ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ फॉर्म ए एंड फॉर्म बी। यू हैव टू शो योर वर्किंग इन क्लास 12th, ओके, फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। Now we are moving to example 4. Now example 4 same question है, just see, you have to calculate what? Calculate, just a minute, calculate what? Just see, we have to calculate value added by firm A and B and GDP FC. अब here conversion is required. GDP FC पूछ लिया है, MP नहीं पूछा है। हमारा जो फॉर्मूला लगता है दोनों की वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो व्हाट वी गेट GVA MP। बट पूछ क्या लिया? FC, तो ये तो नहीं चेंज करना पड़ेगा, लेकिन MP को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू FC। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। सी, सेल्स बाय फॉर्म ए, ओके, परचेज बाय फॉर्म बी बाय फॉर्म ए फ्रॉम फॉर्म बी। परचेज किया है ये ए ने, ठीक है, ये उसकी परचेज हो गई। तो ये अभी हम ए को फोकस कर रहे हैं, ए की सेल, ए की परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय बी। ये बी की, यहाँ पे छोटा छोटा लिख देते हैं, ये बी की फ्रॉम फर्म ए बाय, अच्छा ओके वेट, तो इसको थोड़ा नीटली कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्स बाय, तो क्या कर रहे हैं, लेट्स सी, फिर से नीटली कर देते हैं। ओके, सेल्स बाय फॉर्म ए, तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये किसकी सेल है? ए की सेल है। परचेज फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, फॉर्म बी से ख़रीदा है फॉर्म ए ने, तो यानी ये परचेज है किसकी? ए की। परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय बी, ए से ख़रीदा बी ने, तो ये परचेज हो गई बी की। सेल्स बाय फॉर्म बी, ऑब्वियसली दिख ही रहा है ये सेल्स बाय फॉर्म बी है। आगे आ जाओ, लेट्स सी दिस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फॉर्म। अब यहाँ पे हमको सेल्स प्लस चेंज स्टॉक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर हमको चेंज स्टॉक दिया हुआ है। तो चेंज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, तो ना ये तो क्लियरली आपको दिया ही हुआ है, तो नो इश्यूज़। फॉर्म ए का क्लोजिंग स्टॉक दिया है और फॉर्म ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। फॉर्म बी का क्लोजिंग स्टॉक दिया है एंड फॉर्म बी का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है चेंज इन स्टॉक, तो कोई इशू नहीं है, वी विल डू दिस। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ द फॉर्म, ये जो हो गया ये इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ जाएगा। दिस इज टैक्स पेड, दिस वी हैव टू शो। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। Okay, now let's see the question. ऐसे again we have made the table, alright, so just see, producer A, producer B, purchases from firm B, change in stock, then you will do what, कि आपको अब मिल गया, मैंने तो बता दिया कि क्या क्या सेल है, तो मैंने बोला सेल A, इनकी सेल बाय फर्म A ये है, फिर एक ही सेल है, सेल बाय फर्म A, ठीक है, 100। फिर अब इनके परचेजेस क्या हैं? परचेजेस फ्रॉम बी, ये इनकी इनपुट हो गई, ये इनका चेंज स्टॉक हो गया, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारा ये हो गया सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ये माइनस IC, ये इन सबको कैलकुलेट करके व्हाट वी गेट माइनस वट एवर द थिंग इज़, ओके, -5 था इनका, चेंज स्टॉक -5 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली बी का भी कर लिया, ठीक। नाउ सी व्हाट, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, देखो वैल्यू एडेड बाय फर्म ए कैसे आया 55 lakhs, लेट्स सी। अच्छा चलो पहले बी का देख लें, बी का देखते हैं। बी में भी हमने क्लियर किया हुआ था, बी में क्या किया था? सेल बी की 200 है, परचेजेस क्या हो गई? वो जो भी कुछ खरीदेगा फर्म बी, चाहे वो इंपोर्ट करे या ए से ख़रीदे या डी से ख़रीदे या गवर्नमेंट से ख़रीदे, वो उसकी इनपुट होगी, वो उसकी IC होगी। ये है आपकी 190 आई गेस, ठीक है।
फिर चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 35 माइनस 45, ये भी माइनस में आ गया। ठीक, तो अब हम टेबल पे ज़रा गौर करते हैं। आईसी इनकी कितनी है, 60 है, ए की आईसी 50 है। यहाँ पे इनको जो सेल मिल रही थी, सेल प्लस चेंज स्टॉक क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो 100 तो सेल है और चेंज स्टॉक कितना है, -5 है, तो 100 - 5 कितना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट 95। और आईसी जो उसने परचेज़ किया बी से, अभी वी आर फोकसिंग ऑन ए फर्म, वो है 40, तो 95 - 40 55 वैल्यू एडिशन बाय फर्म ए। ओके, दिस इज़ अ थिंग। अब हम आते हैं प्रोड्यूसर बी पे। सिमिलरली वी विल डू दैट ऑल्सो। लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट। ओके, सेल्स बी की 200 है। अगेन फॉर्मूला इज व्हाट, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, तो देखो 200 क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 35 - 45 -10, तो 200 - 10 कितना हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट 190। अब इनका इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो इन्होंने परचेज किया फर्म ए से, दैट इज़ 60, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी इज़ वैल्यू एडिशन डन बाय फर्म बी। तो 190 - 60 यानी कि 130 इज़ वैल्यू एडिशन। अब सेकेंड पार्ट इज सेइंग व्हाट, कैलकुलेट जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, इस फॉर्मूले से दोनों फर्म्स की जो हमारी इकोनॉमी में वी आर अज्यूमिंग देयर आर ओनली 2 फर्म्स, फर्म ए एंड बी, तो क्या है, दोनों फर्म्स का वैल्यू एडिशन अगर हम जोड़ देते हैं वी विल गेट जीडीपी एमपी। दोनों को जोड़ दिया, व्हाट वी गेट 185, 55 प्लस 130 इज़ 185, ये क्या मिल गया, जीडीपी एमपी। नाउ कन्वर्जन, सी नाउ वी आर मूविंग टू कन्वर्जन। कन्वर्जन हुआ, ये फॉर्मूले से क्या मिला, जीडीपी एमपी। अब इसको कन्वर्ट करना है जीडीपी एफसी पे। दिस वी हैव डिस्कस्ड वेरी डीपली इन डिटेल इन मेनी क्लासेस प्रीवियसली, तो दिस आई एम लीविंग अप टू यू, कैसे कन्वर्जन करना है। क्या माइनस करेंगे एमपी में से एफसी, जीडीपी सेम है, क्या चेंज करना है, एमपी को एफसी बनाना है। तो क्या करते हैं, नेट माइनस करते हैं। नेट हमें दिया हुआ था, टैक्स दिए हुए थे ना कुछ, वो आपने माइनस किए, 185 - 30, तो यू विल गेट 155. This was 2015 question. Okay, this is 2015 example 5. ये आपके होमवर्क के लिए है, just see, this is the question. Calculate gross value added at factor cost. डोमेस्टिक सेल्स दी हुई हैं, एक ही फॉर्म है आई थिंक, यहाँ पे डोमेस्टिक सेल दी है, चेंज इन स्टॉक दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है, निकालना क्या है, फिर जीडीपी एमपी निकालना है, यानी एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है। ठीक, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है जो रिक्वायर्ड नहीं है, बट फॉर कन्फ्यूजन दे हैव गिवन टू यू, तो कीप दिस इन माइंड। फर्स्ट यू विल राइट फॉर्मूला, देन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग एंड पुटिंग द वैल्यूज। ओके, तो जो फॉर्मूले में नहीं रिक्वायर्ड है दैट यू विल नॉट टेक एट ऑल, ignore the extra information, just focus on formula. This is my hint for solving this question, focus only on the formula. Okay, no extra information, don't get confused with the extra information. So this is your homework, example 5.